h अपॉन अंडर रूट 2m ke। हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है, clear, and again we have one more formula especially for the electron. Wavelength in angstrom is given by 12.2 under root of v, or we can write under root 150 upon v, clear। अच्छा, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखे इन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोथ आर सेम। potential difference in volt, kinetic energy in electron volt for any electron is same. If you accelerate electron by 1 volt, then the kinetic energy will be 1 electron volt. 2 volt, 2 electron volt. So जहां पे भी ionization potential, potential clear, ये इलेक्ट्रॉन के लिए आता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। तो हमारा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6.8 वोल्ट। तो किसी भी एक फॉर्मूले में रख दो 150 अपॉन 6.8 अंडर रूट, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाए। इज दैट ओके? क्लियर है? जिसका भी डाउट था ये, दर्शना। सर मैंने E3 पूछा था। अच्छा, मैंने E1 सॉल्व किया है। बट सभी को ये पॉइंट लिखना है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट and kinetic energy in electron volt for given electron is same. For an electron, potential energy in volt and kinetic energy in electron volt are same. सर डिक्टेट करो ना। लिखता हूं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। E3 after this question. सर E2 भी है। हाँ, मैं एक्चुअली वो जो सीक्वेंस में चैट बॉक्स में उस सीक्वेंस में बस कर रहा हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। E3, see, we have this relation de Broglie wavelength is inversely proportional to 1 upon under root potential difference. हमारे पास फॉर्मूला है h upon under root 2 mqv. So for a given substance, let's say mass is constant, अल्फा पार्टिकल ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, कोई भी एक सब्सटेंस के लिए मास कांस्टेंट हो गया। इफ वी आर चेंजिंग ओनली पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रिलेशन आएगा। अब इस क्वेश्चन में E3 में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 100 वोल्ट से, क्लियर। जब 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज λ1, then it is de-accelerated by 19 volt. De-acceleration मतलब उसकी एनर्जी को डिक्रीज किया 100 minus 19। अब इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है λ2, क्लियर। then further it is de-accelerated, retarded by 32 volt, further 100 minus 19, further 32। तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज λ3। now you need to determine λ3 माइनस λ2 अपॉन λ1, ये हमें कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आता है दर्शना क्वेश्चन? यस सर।
चलो अब एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। lambda is proportional to 1 by root v, so we can write lambda equal to some constant upon root v, जो h वगैरह सब कुछ आ जाएंगे इसमें। क्लियर? so k lambda 3 corresponding to this 49 volt, 100 minus 19 minus 32 which is 49. so lambda 3 को लिखो k upon under root 49, k upon under root 81, k upon under root 100, 100 volt, 81 volt, 49 volt. k will cancel out, तो proportionality आ जाएगा 1/7 minus 1/9 upon 1/10. जब सॉल्व करोगे 9 minus 7 2 तो 20/63 आ जाएगा। 20/63। क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर हो गया। और भी जिसका भी डाउट था E3? क्लियर है सर। हाँ साक्षी, E2 किसका डाउट है? पार्ट 1 पार्ट 2? Part 1, E2 and E5. पार्ट 1 E2। Deduce the condition when the de Broglie wavelength associated with an electron would be equal to that associated with the proton if a proton is this many times. Sure. de Broglie wavelength होता है h upon m into v. h is constant. de Broglie wavelength Some- for electron है। सर मीनिंग बताओ ना पहले। हाँ मीनिंग बताता हूँ मैं, क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूँ सबसे पहले। de Broglie wavelength है h upon mv. Now in this question you need to determine the conditions, deduce the condition when de Broglie wavelength of electron and de Broglie wavelength of proton are same. हमें वो condition बतानी है when these two wavelengths are same. Is that okay? क्वेश्चन ये पूछा है। क्लियर है साक्षी क्वेश्चन अभी? यस सर। mass of electron, velocity of electron, mass of proton, velocity of proton. h को कैंसिल कर दो, इक्वेट कर दो इन दोनों को। तो mass of electron, velocity of electron, mass of proton, mass of proton होता है 1836 times of mass of electron। ये mass of electron कैंसिल हो गया। This is the final condition, velocity of electron must be equal to 1836 times of velocity of proton। ये कंडीशन होगी। Is that okay? यही आंसर होगा ना? हाँ, आंसर कुछ और दे रखा है क्या? यही है सर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। जो कंडीशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल प्रोटॉन इनटू प्रोटॉन एक कांस्टेंट है। हितेश, यू आर Every नॉट time. प्रॉपर्ली ऑडिबल। मुझे नहीं आवाज आई हितेश तुम्हारी प्रॉपर की, क्या बोल रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो हितेश। सर जो प्रोटॉन है वो कंडीशन में वो कांस्टेंट रहेगा क्या हमेशा ऐसा? प्रोटॉन है किस कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा? ये इक्वेशन में कि मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
चलो एक मिनट सुनो, यदि तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, एक्चुअली ये कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। यदि यही क्वेश्चन है तो मुझे वैसे आवाज नहीं आई है प्रॉपर, चैट बॉक्स में लिखो तो वैसे, if de Broglie wavelength of electron and proton are same, in that scenario this condition should be true if this information is given। यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है कि कंडीशन होल्ड करेगी। और कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देखकर आंसर कर दूं। चलो पार्ट 1 का और किसी का कोई और डाउट है इसके अलावा? पार्ट 1 E5 है ना साक्षी? Yes. हाँ हितेश का मैसेज है सर दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट। हाँ तो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, दिस रेशियो इज कांस्टेंट ओनली व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, अदरवाइज नहीं होगा। और यदि तुम बात करोगे मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दिस, हाँ ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। और ये तो हमने सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में ही देख लिया था। सो पार्ट 1 E5, uncertainty in position and velocity of the particle are this and this, then find the mass of the particle। साक्षी इसमें E5 में क्या कैलकुलेशन नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम है बताओ? तो ये कॉन्सेप्चुअली तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इश्यू होगा उसमें। सर उसमें कैलकुलेशन बहुत गलत आ रहा है। करके बता देता हूँ, चलो मैं कैलकुलेशन E5 का डेल्टा एक्स डेल्टा पी, हमें डेल्टा वी दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डेल्टा वी ले लो, मास इज इक्वल टू h/4 पाई। Now delta x is given in the question 0.1 nanometer. So 0.1 10 to the power minus 9 meter in SI unit. Velocity is given Delta X means wavelength. wavelength। Position. चेक करो लेक्चर नोट्स में क्या लिखा है, डेल्टा x इक्वल टू एरर इन पोजीशन। एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लिखा हुआ है ना ये डेल्टा x डेल्टा v डेल्टा p। डेल्टा v इज ऑलरेडी गिवन इन SI यूनिट। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना कैसे करते हैं। 6.6 एज इट इज, 4 3.14 0.1 5.27, इसको मैं कंबाइन करता हूँ 0.527। क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है सारे डिजिट्स नंबर्स वाले को सेपरेट किया इनटू 10 टू द पावर -34, ये +9 हो जाएगा, दिस बिकम +24। अब तुम्हें बस इसके लिए तो सॉल्व करना है। 4 3 12 12.56 into 0.5 रफली, तो 6.6 अप्रोक्सीमेटली 1 के क्लोज आ जाएगा। ठीक है? अब वो ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, जैसे यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया जो इस बार आए थे जेई में, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना भी तुम्हें करना पड़ सकता है। इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए 22/7 भी लिख। सर 100 आंसर है पीछे। हाँ तो इसको यदि तुम सॉल्व करोगे -34 + 9 + 24 और +24 + 9 कितना होगा? 10⁻³ 33। तो ये आएगा -34 + 33 -1, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया। लेट से ऐसा यूनिट केजी, ग्राम में कन्वर्ट करो 10 to the power -3 into 1000 ग्राम, कितना आ रहा है? आ रहा है आंसर अभी? इज दैट ओके ऋषभ? ऋषभ यस नो रिस्पॉन्ड तो करो। यस सर।
Pritika misses us on Sunday. Is there any test? मेरा टेस्ट लास्ट टेस्ट कब था वैसे? लास्ट टू लास्ट संडे। पिछले के पिछले संडे। तो फिर इस संडे टेस्ट रख लेते हैं हम। सर टॉपिक अच्छा ये बताओ, मोहित सर ने तुम्हें कोई टेस्ट का अनाउंस किया है क्या? नो सर। सर मैं मोहित सर से डिस्कस करके फिर तुम्हें टॉपिक ग्रुप पे बताता हूँ। मोहित सर का कोई टेस्ट हुआ है वैसे अभी तक तुम्हारा? नहीं सर, No, उन्होंने अभी बाकी है बहुत सारा। तो सर के पोर्शन का टेस्ट रख लेते हैं, मैं सर से बात करता हूँ। yes sir, organic sir. चलो पार्ट 2 पर आते हैं हम। पार्ट 2 के आई थिंक 4 क्वेश्चंस हमने क्लास में ही किए थे, सारे ओड क्वेश्चन। Yes, sir. E4, an alpha particle is associated through a potential difference V, the de Broglie wavelength। अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट 2 E4। चलो हमें कैलकुलेट करना है de Broglie wavelength for the alpha particle and we know the de Broglie wavelength for electron in terms of potential difference V। हमें उसके बारे में पता है, जिसका इंफॉर्मेशन हमें पता है डिनोमिनेटर में जो दे रखा है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में ले लो। फॉर्मूला क्या होता है de Broglie wavelength का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में? ये होता है h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा to mqv, charge of alpha, into potential difference. For electron, h upon under root 2 mass of electron, charge of electron, into potential difference. Definitely we are accelerating through same potential difference v, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। h कैंसल, v कैंसल, 2 कैंसल। mass of electron into charge of electron upon mass of alpha into charge of alpha। Is that okay, clear? क्या यहाँ तक समझ में आता है सभी को? Sir. सर इलेक्ट्रॉन क्यों लिया सर रेशियो में? क्या हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है de Broglie wavelength of electron is 150 upon v। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए Yes, sir. डिराइव किया था हमने। मुझे प्रोटॉन अल्फा इन सबका तो नहीं पता है, तो ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे 150 की जगह कुछ और नंबर है बस। डेफिनेटली हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? जो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। क्लियर है? और सारे फॉर्मूले एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं और ये एंगस्ट्रॉम में ही आता है। समझ गया सर। mass of electron, you can take mass of electron as mass of proton upon 1836, इतना ले लो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो E। मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 protons and 2 neutrons, टोटल मास इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज होता है इसका +2e, तो इसका 2e ले लिया। mass of proton into charge of proton, mass of electron into charge of electron। ये आएगा 1 अपॉन 1836 इंटू 4 इंटू 2, इसका अंडर रूट। अब हमें इसको रफली सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? और फिर उसके बाद लेमडा अल्फा इस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, which is 150 upon v। सॉल्व करने पे फिर जो भी आ जाएगा। इज दैट ओके? अप्रोच ऐसे रखना है हमें। Yes, sir. Clear है। Yes, sir.
अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, ये अनाउंसमेंट सुन लो। तुम्हें सेंटर पे मतलब सबको कॉल आया होगा, जैसा पीटीएम में डिस्कस भी हुआ था कि हम इस वीक में कुछ 3 4 5 बच्चों को डेली बुलाने वाले हैं। तो हर किसी से जो भी सुटेबल तुम्हारा डेट हो वो पूछा गया है। कुछ बच्चे बाहर के हैं जो शायद इस वीक नहीं आ सकते हैं, तो तुम जब भी आओ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक विद इन 15 डेज जब भी आने वाले हो, तुम तब आ सकते हो सेंटर पे। सिर्फ एक प्रायर कॉल कर लेना कि सर आप अवेलेबल हैं या नहीं। क्लियर? जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बेसिकली थोड़ा सा तुम्हें गाइड करना है पर्सनली, तुम्हारा पर्सनल परफॉर्मेंस कैसा है उस चीज को लेकर। क्योंकि लाइव क्लास मतलब ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस में काफी बार हम तुम्हारे टच में होते हैं, और जब भी तुम सेंटर पे आओ यू हैव टू ब्रिंग लेक्चर नोट्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ऑल 4 सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक का भी इवन तुम्हें लेकर आना है। क्लियर? सारे लेक्चर नोट्स लेकर आने हैं तुम्हें, होमवर्क नोटबुक लेकर आना है सेंटर पे। वो हम देखेंगे ताकि हमें भी आइडिया लगेगा कि तुम कर क्या रहे हो और कुछ गाइड कर सकेंगे तुम। ठीक है? और ट्राई करना 4 o'clock का टाइम है, तुम 4 बजे के इवन पहले भी आ सकते हो, 3-3:30 भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं। बट लेट मत होना, स्पेशली आज जो भी आ रहे हैं आज तो लेट मत होना, क्योंकि आज 5 बजे से 12 का भी एक सेशन है। और अभिराज अनम्यूट करो। अभिराज, Abhiraj, can you hear me? No mic is there for Abhiraj. Okay. तुमने टाइम दिया था अभिराज, आज क्या है, फ्राइडे, वेडनेसडे का टाइम दिया था कि वेडनेसडे को आने वाले हो, तुम आए नहीं। क्योंकि सबके टाइम स्लॉट फिक्स रखे हैं, एक दिन में 5 बच्चों से ज्यादा को नहीं बुलाया है। मतलब तुमने टाइम स्लॉट दिया था, किसी और को वो नहीं दिया गया था। चलो, इसके बाद है E2। What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for 2 electrons each having 0 initial energy and accelerated through 50 volts and 100 volts? I think ये हो जाएगा साक्षी अब। Under root V2 by V1. De Broglie wavelength is inversely proportional to 1 by root, inversely proportional to root of V. 1 by root V के proportional होता है। So if you want to take the ratio lambda 1 upon lambda 2, just V2 by V1 कर देना। V2 का वैल्यू 200 upon 50 का अंडर रूट, दैट इज 2y bar। क्लियर है साक्षी? Yes, sir. एनी अदर डाउट? मतलब एक E6 बचता है क्या, वो भी बताना है, या हो गया E6? मुझे ध्यान नहीं, किसी ने पूछा हो तो। कंप्लीट हुआ होमवर्क? ठीक है। सर बता दो E6 भी। E6 भी, E6 क्या था? The wavelength of a charged particle, the square root of the potential difference through which it is accelerated. अभी तो बताया, बोर्ड पे लिखा है। The wavelength of charged particle is inversely proportional to the square root of potential difference. Lambda is inversely proportional to root V. सर पार्ट 1 का E4 बता दो ना एक बार। पार्ट 2 का E4 क्लियर है अभी? जिसका भी डाउट था, सॉरी E6। पार्ट 1 का E4। If an electron having kinetic energy 2 electron volt accelerated through the potential difference 2 volt, then calculate the wavelength associated with the electron. चलो, सर आपने जो नोट लिख के दी वो यूज नहीं आएगी इस क्वेश्चन में?
कौन सा नोट? वो kinetic energy in electron volt and potential difference in volt are same for electron. हाँ, वो use कौन से IV क्वेश्चन में बोल रहे हो? पार्ट E4 1 का E4 या पार्ट 2 का E6? किस पार्ट क्वेश्चन की 1 का बात कर रहे हो? E4 हाँ, यूज आएगा उसमें डेफिनेटली। तो पार्ट 1 के E4 में काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वी आर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन फर्दर बाय 2 वोल्ट। उसको 2 वोल्ट से फर्दर एक्सेलरेट किया है तो काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगा। 2 ऑलरेडी था, 2 से और एक्सेलरेट कर दिया तो 2 + 2 4 हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 150 बाय 4 कितना होता है? नॉट फिक्स 75 बाय 2। सॉल्व करना है इसको, जो भी आएगा फिर इसको 12.2 और √4 is 2 6.1 के आसपास एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। 6.1 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हेडिंग, wave mechanical model, the last model, well accepted model till now. थोड़ा सा डिफरेंट है ये मॉडल, मतलब हमें थॉट प्रोसेसिंग थोड़ा सा यहाँ पे अलग करना होता है। द रीजन इज बेसिकली इन दिस मॉडल बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड। हमने ये भी कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा होता है, वी कैन काउंट इलेक्ट्रॉन 1 2 3, उसके एनर्जी को फोटॉन्स के फॉर्म में डील कर सकते हैं जो पार्टिकल होता है। बट we have wave nature when electron is moving around the nucleus, it is moving in the form of wave, जैसा कि डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया था। या तो यहाँ पर दोनों ही नेचर हमें कंसीडर करने होंगे, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। हितेश का मैसेज, सर वेव मैकेनिकल मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोथ आर सेम। यस, बोथ आर सेम। क्वांटम मैकेनिक्स में ही आता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। कुछ पॉइंट से पहले मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सर डिस्कशन के बाद ये पहला ही टॉपिक लिया है ना, बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस यस, फर्स्ट टॉपिक है। जस्ट अ मिनट।
जस्ट मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। सर ईयर 1936 है क्या? 1926। सर इस मॉडल में न्यूट्रॉन नहीं था क्या? क्या? इस मॉडल में न्यूट्रॉन का कोई मतलब न्यूट्रॉन नहीं दिखाया था इसमें। न्यूट्रॉन का सच रोल बहुत ज्यादा नहीं है, बट न्यूट्रॉन इज देयर एट द न्यूक्लियस। इस मॉडल में सब बाद में एक्सेप्ट किया गया। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी एंड दिस मॉडल वाज सजेस्टेड इन 1926। इसे बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया। चलो हमने ड्रॉबैक्स तो पहले ही कर लिए थे ना लास्ट सेक्शन में। ड्रॉबैक्स हो गए थे हमारे पहले ही। Yes, sir. In this model, wave nature of electron is considered, and the concept of orbital, that is three-dimensional, was introduced instead of 2D orbit. बजाय थ्री डायमेंशनल सिस्टम के 2D ऑर्बिट, टू डायमेंशनल ऑर्बिट के थ्री डायमेंशनल कंसिडर किया गया। क्लियर? हितेश का मैसेज सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्या और भी किसी के साथ है ऐसा? नहीं सर, अभी 2 मिनट के लिए। एक्चुअली हितेश पता नहीं, तेरी आवाज मुझे कभी भी नहीं आती है, मतलब वो बोल रहे हमेशा हैं नेटवर्क इशू स्क्रीन होता है। क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, बट हितेश जनरली तो चैट बॉक्स में ही लिख दिया कर, मतलब तेरी आवाज मुझ तक क्लियर आती ही नहीं है वैसे। ओके, so concept of orbital was introduced instead of two dimensional orbit। जो इसके पहले तक कुछ टू डायमेंशनल ऑर्बिट हुआ करते थे अराउंड द न्यूक्लियस, सेंटर पर न्यूक्लियस हो गया टू डायमेंशनल ऑर्बिट। नॉट इंस्टेड ऑफ टू डायमेंशनल वी हैव थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट, जिसका शेप कुछ डिफरेंट आएगा, ऐसा भी होगा, डबल डम्बल भी होगा, देखेंगे हम सब कुछ कैसे शेप होंगे उसके। Heisenberg uncertainty principle was also considered by Erwin to describe the structure of atom. Heisenberg suggested that we cannot locate, we cannot find the exact position and momentum of a fast moving particle like electron. इलेक्ट्रॉन का कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं बता सकते हम। इफ वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, बोर्ड्स मॉडल में क्या किया गया था, एग्जैक्ट रेडियस मतलब उसकी पोजीशन बता दी थी, वेलोसिटी भी एग्जैक्ट बता दी थी, दैट इज 2.18 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पोजीशन, अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी हमें पता लगेगी, क्लियर, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। This model can explain existence of sub energy level in a given shell, that is Zeeman and Stark effect। ये जो Zeeman and Stark effect है, which is the drawback of last theory, यहाँ पे उन्हें भी कंसिडर किया गया, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर जब एग्जिस्टेंस होगा सब एनर्जी लेवल का तो Zeeman Stark effect को एक्सप्लेन कर पाएंगे, देखेंगे इसे भी हम आगे। It can explain structure of an atom contain more than one electron, तो सबसे ज्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। और बोर्ड्स मॉडल, इट कैन एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर ऑफ यूनिइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हियर वी कैन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जल्दी से कॉपी कर लो ये पॉइंट्स। सर मोर देन वन मतलब सिर्फ वन से ज्यादा जिसके इलेक्ट्रॉन है उसके ही क्या? मोर देन वन मतलब किसी भी एटम्स के लिए जनरली सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन के साथ पास होगा ना,
बाकी मैक्सिमम एटम्स तो मोर देन 1 ही होंगे। बाकी हम बात करें डेफिनेटली कि एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, बोर्स यूज करेंगे या वेवमैकेनिकल यूज करेंगे। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोर इज बेटर देन वेवमैकेनिकल, उसमें बोर मॉडल ही कंसिडर किया जाता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अच्छा, कुछ बच्चों को जब कॉल किया गया था कि डेट कब आ सकते हैं, कब पॉसिबल है, बच्चों को या पेरेंट्स को, जिसको भी कॉल गया हो, पेरेंट्स को ही गया होगा प्रेफरेबली तो, बट उन्होंने बताया था कि विल लेट यू नो, कुछ टाइम फिक्स नहीं बताया था। तो जिनका भी ऐसा है वो मतलब एक बार टाइम कंफर्म कर ले ऑफिस में, मतलब तो दीपक जी उन्हें कॉल करके, ताकि रश ना हो बस किसी भी दिन। सिमरन का मैसेज, सर एट प्रेजेंट हम कौन सी थ्योरी और मॉडल में बिलीव करते हैं। At present, the last model, wave mechanical model, is well accepted, but for single electronic atom or ions, for the calculation purpose, Bohr's theory is better. So we use both the theory, basically. It depends on our requirement, which kind of thing, which kind of information we want. चले हम आगे, इतना कॉपी कर लिया है। रुको सर। अभी हो गया, चले अब आगे। Yes, sir. Now see, basically Schrodinger suggested one equation called Schrodinger equation. This is the Schrodinger equation, and when you solve this equation you will get all type of information about an electron. हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका अप्रोक्सीमेट पोजीशन, वेलोसिटी, शेप ऑफ 3-dimensional orbital in which electron is present, so all type of information we get from this equation. yeah? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये इक्वेशन हमें याद रखना है। डायरेक्टली ऑप्शन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें पता लगना चाहिए फिर। So basically all kind of information about an electron is derived from the Schrodinger equation. अब यहाँ पर कुछ साइन तुम्हें ऑलरेडी पता है। दिस त्रिशूल काइंड ऑफ साइन इज कॉल्ड साई, इसको नेम दिया गया है साई, एंड दिस डेनोट्स वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन को डेनोट करता है। अब वेव फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे बाद में। Here x, y, z are coordinate axis, x axis, y axis, z axis. Mass, m is mass of electron, e is total energy, v is potential energy, जो ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है साई, वो एक सिंबल है ना, वो सिंबल किसको डेनोट कर रहा है, वेव फंक्शन को डेनोट कर रहा है।
d square psi by dx square plus d square psi by dy square d square psi by dz square 8 pi square m upon h square into e minus b into psi equal to 0. ये इक्वेशन है सर श्रोडिंगर वो इक्वेशन. डी स्क्वायर है या रो? डी है वो. डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आई थिंक तुमने. dy by dx पढ़ा है नहीं पढ़ा है अब तक? डबल डिफरेंशिएशन. ये डबल डिफरेंशिएशन. बुकलेट में रो दिया हुआ है. वो रो एक्चुअली वो जो रो है वो भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है. वो एक ही बात है. वो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा dy by dx. बोथ आर सेम. मतलब वो भी डी है ना. वो तुम पढ़ोगे आगे मैथ्स में जाकर. डिफरेंशिएशन को दोनों तरीके से डिनोट किया जाता है. एंड देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस डी एंड दिस डी जो अभी हमारे कोई काम का नहीं है केमिस्ट्री में. क्लियर. तो एक ही बात है. डी लिखे रो लिखे मतलब वो डिफरेंशियल बोलते हैं उसे वैसे. या उसको कभी कभी ऐसे डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है. डेल्टा इज आल्सो डिफरेंशिएशन. डेल वाई बाय डेल एक्स वो जैसे भी डिनोट किया जा रहा है डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है. चलो हम आते हैं साइन पर. इट इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं. साइन है क्या? व्हाट डज इट डिनोट्स एग्जैक्टली? It gives all kind of information about an electron like its approximate position, approximate velocity, momentum, probability of finding electron. ये सब हमें देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में. It can have both positive as well as negative value. ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है. It doesn't have any physical significance. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं है ना. मतलब जस्ट हम इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए सॉल्व करते हैं. ऑर्बिटल. It is a three-dimensional volume around the nucleus in which probability of finding electron is maximum. That is 90 to 95%. ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल आया है. थ्री डायमेंशनल है. In which the probability of finding electron is maximum. और मैक्सिमम कितना होगा? 90 to 95%. कॉपी कर लो जल्दी से पेज. ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है क्या? Yes. Orbit is two-dimensional circular orbit periphery, but orbital is three-dimensional. That may be spherical in shape. That may be some other shape like dumbbell shape. It may have double dumbbell shape. कुछ ऐसे शेप आएंगे वो देखेंगे इसे चैप्टर में आगे. सर वो फर्स्ट लाइन एक बार रीड करो ना. All kind of information वाली. All kind of information about an electron is derived from Schrodinger equation. वो Schrodinger की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है. मैं लिख देता हूँ उसे. SCHRO. डी के बाद आई है सिर्फ. नो करेक्शन बताया सर. चलो कॉपी कर लो जल्दी से. ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है कि एग्जैक्टली है क्या बायोमैकेनिकल मॉडल. हर्षिता, हर्षवर्धन, हितेश एंड देवेश, समझ में आ रहा है जितना अभी तक किया है हमने इसमें? यस सर. Yes, sir.
अच्छा, वेदांत का मैसेज सर टीचर विल बी देयर डेफिनेटली। जो सेशन रखा गया है ना, इसमें मतलब मैं या फिर मनीष सर या हम दोनों, जनरली दोनों ही रहेंगे हम। मतलब हम ही नोट्स वगैरह जो बुला रहे हैं, हम ही तुम्हें देखने वाले हैं, कुछ एडवाइस करने वाले हैं, कुछ लगेगा तो बस नहीं। और फिर नेक्स्ट वीक आएंगे तो दोनों रहेंगे। मतलब अब आज भी दोनों रहेंगे, इस वीक में भी दोनों ही सर हैं। सारी बुक्स लानी है ना? सारे नोटबुक लाने, हाँ। बुक्स मतलब नोटबुक जिसमें तुम अपने लेक्चर नोट्स Yes. लिख रहे हो, नॉट बुकलेट। और एट द सेम टाइम कुछ बुकलेट्स भी आए हुए हैं जो तुम्हें दिए जाएंगे, शायद 4-5 बुकलेट्स हैं एक्स्ट्रा जिन्हें नहीं मिले, कुछ लोगों को शायद मिल गए थे। हितेश का मैसेज, सर व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेस हियर? पता चलेगा एक्सेस का रोल क्या है। सर्वेश हो गया कॉपी? जस्ट 2 minutes सर। सर पिछला पेज दिखाओ ना। मैं फिर ग्रुप पे भेज दूंगा। कितना बाकी है उसमें? सर लास्ट के 2-3 लाइन। लास्ट लाइन बाकी सर। ऑर्बिटल का। चलो 20 सेकंड है तुम्हारे पास। We have now one more term. हमने जैसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज ऑर्बिटल। साई जो था, इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। इसके दोनों पॉसिबल वैल्यूज थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ वी आर डिफाइनिंग वन मोर टर्म दैट इज साई स्क्वायर, which denotes probability of finding electron per unit volume, that is probability density. साई स्क्वायर यहाँ पे एक नया टर्म हमने डिफाइन किया, probability density function. Clear? So density होता क्या है? Something upon volume. Mass density, mass upon volume. So psi square is probability of finding electron per unit volume. कुछ ये हो जाएगा। Clear? ये हमें ये बताएगा, let's say we have nucleus at the center. So nucleus के आसपास we have such kind of orbital. तो इस orbital में भी per unit volume में इलेक्ट्रॉन के होने की probability क्या है? So the probability of finding electron per unit volume. अच्छा,
वैसे मैथमेटिक्स में एक पूरा चैप्टर है पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वन ऑफ द सिस्टम इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई जेड होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. क्लियर? एंड वन ऑफ द सिस्टम इज पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम किसी भी पॉइंट को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं. दे कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय आर थीटा फाई. उन्हें आर थीटा फाई से भी डिनोट किया जा सकता है. क्लियर? where r is the distance from the nucleus. देखो पॉइंट P का डिस्टेंस न्यूक्लियस से और ओरिजिन से, ये हो गया r. क्लियर? थीटा इज द एंगल ऑफ दिस r with any one of the axis. लेट्स से y एक्सिस के साथ ले लिया हमने थीटा. एंड phi is angle of its projection on the opposite plane with any other axis. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. तो इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना होगा. ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है. अब आर थीटा फाई क्या होंगे? 3 डायमेंशन में तुमने एक पॉइंट ले लिया कहीं भी. क्लियर? इसको 3 डायमेंशन में जूम करना. पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज आर. एंगल ऑफ दिस आर विद वन ऑफ द एक्सिस इज थीटा. क्लियर? अब इसका हम शेडो लेंगे. शेडो लेंगे मतलब ऊपर से जस्ट उसको परपेंडिकुलरली नीचे तुम ड्रॉप करोगे तो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा. प्रोजेक्शन का एंगल विद एनी अदर एक्सिस इज फाई. एंड वी कैन कन्वर्ट एक्स वाई जेड इनटू आर थीटा फाई, जो मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में तुम देखने वाले हो आगे. यहाँ पर जस्ट उसने शॉर्ट में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके. मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा. तुम इवन खुद से भी समझ सकते हो, बाद में देख लेना इसे. तो आर कॉस थीटा उसका वाई एक्सिस पे जो भी आएगा, फिर आर कॉस थीटा साइन थीटा, सब कुछ वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो एट द एंड सिर्फ इस पूरे का मीनिंग इतना है, we can convert x by z into r theta phi. अच्छा, हमारे पास जो सोडिंजर इक्वेशन था d स्क्वायर psi upon dx स्क्वायर up to z स्क्वायर and 8 pi square m upon h स्क्वायर, पूरा इक्वेशन, when you solve that equation you will get wave function psi as a function of x y z which can be converted into r theta phi. हमारे लिए ये थोड़ा सा काम का है, इतना समझना. क्लियर? मैं फिर से उसे बताता हूँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम. Schrodinger equation is the equation which gives all type of information about an electron, जिसे सॉल्व करके हम सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं. क्लियर? अब आते हैं हम, जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, we get wave function as a function of x y z. इसका मतलब हमें कुछ ऐसा मिलेगा, लेट्स से x स्क्वायर प्लस yz प्लस 2x, लेट्स से ऐसा कुछ हमें इक्वेशन मिल गया. ये साई आ गया. तो साई किस पे डिपेंड कर रहा है? x y z पर. If you change x, y और z, any one of them, तो साई चेंज हो जाएगा. भाई तुम इन तीनों को कांस्टेंट रखते हो तो साई कभी चेंज नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ x, y, z तो पोजीशन है, कोऑर्डिनेट्स है, उसको डिनोट कर रहे हैं. तो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, और उस पर ही तो डिपेंड करना चाहिए. क्यों डिपेंड करना चाहिए पोजीशन पर? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन उनके अट्रैक्शन और उनके रिपल्शन पर डिपेंड करेगा. तो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो यदि हमें पोजीशन पता लग गई, उनका इंटरेक्शन पता लग गया, तो हमने सारी इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली. क्लियर? एक्स वाई जेड को हमने आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया. अच्छा, जो आर थीटा फाई है, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, थीटा फाई इज द एंगल. This can be further split into 2 पार्ट. R वाला पार्ट अलग और एंगल वाला पार्ट अलग. हम इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन. So the wave function, the total wave function can be split into 2 parts. First one radial wave function, second one angular wave function. जो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियल वेव फंक्शन. The function which depends on angle is called angular wave function. तो बेसिकली इस पूरे पेज पे हमें इतना ध्यान रखना है, हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. किसी पॉइंट P को we can denote in terms of r theta phi. Second, wave function depends on r theta phi, which can be further split into 2 different parts. First one depends on r, second one depends on angle. The function which depends on r, radial wave function. Function which depends on angle, called angular wave function. ठीक है साक्षी?
सर मैंने सुना ही नहीं क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही है मुझे नेटवर्क की वजह से। सर नेक्स्ट ले लो, ज्यादा रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। अच्छा, एक और जो ऑब्जर्वेशन है, कुछ बच्चे पता नहीं लेक्चर के एंड होते होते 8:30 तक गायब होने लगते हैं। तो 38 स्टैंडर्ड 34 बचेंगे। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? सर कॉपी करना है? हाँ, कॉपी करना है पूरा पेज। हाँ, सिमरन का मैसेज सर कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आए। ठीक है, एक्चुअली मैं इसके डेप्थ में गया भी नहीं हूँ। ये तुम सिर्फ कॉपी कर लो, ये तुम्हें यहाँ पर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करना ही है सिमरन। ये मैथमेटिक्स में काफी डिटेल में आएंगी चीजें। तो जैसा मैंने अनाउंस किया है, आज जिन लोगों का पीटीएम सेशन प्लान किया गया है, आज स्पेशली टाइम पे आ जाना है। इवन टाइम के पहले आ सकते हो, कोई इशू नहीं। 3:30 पे भी आ सकते हो तुम, जब भी आना चाहो, बट लेट मत आना। एक्सक्यूज मी सर। सर इस संडे ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों की टेस्ट होगी क्या? मैं एक बार सर से कंफर्म करके बताता हूँ सर का कितना सिलेबस हुआ है, क्योंकि मेरा भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अभी इन वीक में 3-4 लेक्चर्स में। सर टेस्ट हो सकती है जितना पढ़ाया है उतने। That I will let you know after confirming the Mohit sir. So wait for that. ग्रुप पे मैं अपडेट करूंगा तुम्हें जैसा भी हो। चलो, कॉपी कर लिया इतना हमने। यस सर। यस सर, हो गया। नोट, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करके इसे बता रहा हूँ। लिखने का है मेनली इसमें। नोड और एंटी ऑर्बिटल। Orbital is basically where the probability of finding electron is maximum. So anti-orbital क्या हो जाएगा? Where the probability of finding electron is 0. So probability of finding electron is 0. We have one term psi square जो denote करता है probability upon volume. तो यदि probability 0 है तो definitely ये 0 हो गया, तो psi square 0 हो गया। अच्छा बताओ, किसी का भी स्क्वायर कब 0 होगा? क्या किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? जीरो होगा। जीरो का स्क्वायर 0 होगा। तो एंटी ऑर्बिटल और नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर वेव फंक्शन इज 0, साई और साई स्क्वायर इज 0। जब ये 0 होंगे तभी हमें नोड मिलेगा। क्लियर? ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम, दैट इज 0। सर ये 2D नहीं तो 3D भी हो सकता है ना? हाँ, 3D भी होगा, मतलब 3D होगा जनरली, 2D होगा ही नहीं। चलो, अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन का, वेव मैकेनिकल मॉडल का। नाउ
when you solve that wave mechanical equation, Schrodinger equation, you will get some information about an electron. This information are represented in terms of quantum number. Generally जो questions बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे. अब क्वेश्चन आता है फिर हमने वो पढ़ाई क्यों, क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. यदि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएंगे. तो क्वांटम नंबर मेनली है यहाँ से, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे काम का है. Quantum number, these are the 4 numbers which give all type of information about an electron which we get after solving Schrodinger equation. तो बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आई है Schrodinger इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उन्हें रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं हमें. उसका पोजीशन, जैसे हमने एक क्वांटम नंबर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू लेट से 2 है, तो 2 का मीनिंग क्या होगा? 2 मींस व्हाट? इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फ्रॉम 2 to 3, 3 to 4, इससे क्या सिग्निफिकेंस होगा? इस पे एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? तो इनके जो वैल्यूज है इनको देखकर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन क्या है. इज दैट ओके? क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ? इतना समझ में आता है? Yes, sir. चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट वन. हम आज एक क्वांटम नंबर तो कर ही लेते हैं, मतलब सिंपल है फर्स्ट वाला. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, इट इज डिनोटेड बाय n. हम हर क्वांटम नंबर में सबसे पहले पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे. तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी थियोरेटिकली. क्लियर? और बेसिकली ये कुछ और नहीं है. हमने जो बोर्स मॉडल में ऑर्बिट देखा था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट की बजाय इन दिस मॉडल वी हैव शेल, 3 डायमेंशनल शेल अराउंड द न्यूक्लियस. ये सर्कुलर ना होके स्फेरिकल शेल हो जाएगा. एग्जांपल क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल के सेंटर पर न्यूक्लियस, वो जो पूरा क्रिकेट बॉल होता है स्फेरिकल होता है, वो शेल हो गया है. क्लियर? सो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, स्फेरिकल शेल. यहाँ पे ऑर्बिट की जगह 3 डायमेंशनल शेल आ गया है. इफ n is 1, that means first shell. If n is 2, second shell. n is 5, fifth shell. और उन्हें k shell, l shell, m, n, o ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो पहले भी देखा था हमने बोर्स मॉडल में भी. It represents number of shell in which electron is present. If principal quantum number is 3, that means electron is present in third shell. If principal quantum number is 7, that means electron is present in 7th shell. तो किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें डिनोट करता है. As the value of n increases, distance of electron from the nucleus increases. जो क्वाइट ऑब्वियस. जैसे से हम n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. क्लियर? सर ऐसे कितने शेल है सर? मैक्सिमम शेल कितने हो सकते हैं? Wait for a minute. As the value of n increases, size of orbital increases. जैसे से n बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस के साथ साइज भी बढ़ेगा. You can observe this. Let's say first shell इतना बड़ा है, second shell बड़ा है, उसमें बड़ा ऑर्बिटल होगा साइज. थर्ड शेल और बड़ा है, उसका साइज ऑर्बिटल का और भी बड़ा होता है. क्लियर? तो हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे से इनका वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, इवन एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी. हमें एक आइडिया मिलता है एनर्जी के बारे में. एनर्जी का आइडिया एग्जैक्टली दोनों क्वांटम नंबर मिलके देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटम नंबर. तो वो सेकंड क्वांटम नंबर के बाद हम और उसे अच्छे से देखेंगे. अब क्वेश्चन था ऐसे कितने शेल होते हैं थियोरेटिकली इन एनी एटम. वी कैन हैव इनफाइनाइट शेल थियोरेटिकली. प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन एटम की कितने शेल तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है. जनरली 10, 11 तक जा सकता है. क्लियर? कॉपी कर लो जल्दी से. सर ऐसे कितने मैक्सिमम ऑर्बिट्स हो सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन? वही तो आंसर दिया अजिंक्य मैंने. कितने शेल हो सकते हैं मैक्सिमम थियोरेटिकली? वी कैन हैव इनफाइनाइट. क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक बन सकते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन में, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. और यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो 10, 11 तक हम जा सकते हैं. क्लियर अजिंक्य? ओके सर. यस सर.
लक्ष्मी, पीयूष, शिंदे, प्रणव गुप्ता, समझ में आ रहा है इतना? प्रशांत, क्या सीन है अपना? कितना रिकवर हो चुका है तुम्हारा अब तक? सर वो रेजो सर ऐप है ना, उस पे मैं वीडियोस देखता हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है तुम्हारा? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ सर। ये तीसरा लेसन है ना? नहीं, फर्स्ट लेशन है। एक मिनट, तुम बहुत ऐसा नहीं रैंडमली मत देखो ना उस पे। तुम्हें सबसे पहले देखना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है। मतलब उसमें कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, बट तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही देखना स्टार्ट करना अच्छा, उसमें पहले की भी कुछ लेसन है उसमें? है। नहीं, पहले वो हो सकता है पहले हम बाद में कर रहे आईटीसी हैं। होगा। वो पहले बात से मत जाओ। तुम स्पेसिफिक जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना प्रशांत, उनसे पूछो सर हमें मुझे कौन सा लेक्चर अभी इसमें से देखना है। रेंडमली करोगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ना। और उसमें पहले ओके बाद सर। में कैसे भी अपलोड हो सकते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। केमिस्ट्री में मेरे पोर्शन पर तुम्हें स्टार्ट करना है फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इज इट ओके? ओके सर। तो वो जब तक मेरा एटॉमिक कंप्लीट होगा, जैसे कि मॉडल नया है तो शायद तुम्हें ये समझ में आया होगा आज। आया नहीं आया मॉडल? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ, क्योंकि अब यदि जैसे तुम थोड़ा बहुत और कवर कर लेते ना तो शायद पूरा समझ में आ जाता। तो एटॉमिक से स्टार्ट करो और अब जितना जल्दी हो सके खत्म करो। एटलीस्ट ये चैप्टर खत्म हो तब तक तुम्हारी ये चीजें खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। क्लियर प्रशांत? यस सर। हम्म। रोहित, कॉपी हो गया? सेकंड पॉइंट हम आज नहीं कर रहे हैं ना, ये फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड पे ही कराऊंगा, डिटेल में कराना है मुझे। So from second point we'll start in the next lecture. डीपीपी कितने डिस्कस हुए तुम्हारे इस वीक में? 2 A1 A2 ना? उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन बचे सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो डीपीपी डिस्कशन रहेगा A3 A4 रहेगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ A2 एंड A3 A4 क्लियर? यस सर। चलो, shall we end the session now? यस सर। सर होमवर्क। होमवर्क मैं आज नहीं ऐड कर पाऊंगा क्योंकि इतना कंटेंट हुआ नहीं है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही, वो जब क्वांटम नंबर कंप्लीट होंगे उसके बाद ही मैं होमवर्क ऐड कर पाऊंगा। इसलिए मैंने डीपीपी में होमवर्क बता दिया है। ठीक है।